Hi everyone. So today we're going to discuss a new topic, that is the removal of Chief Election Commissioner. Why are you discussing this topic? Because there is news just one day before regarding Chief Election Commissioner Ganesh Kumar is failed. See, in Rajya Sabha Chairman and Lok Sabha Speaker rejected the impeachment notice of motion against Chief Election Commissioner Ganesh Kumar. So why there was a impeachment motion or there was a proposal to remove Chief Election Commissioner? Because opposition को ये लगता है कि our current CEC Ganesh Kumar, he is working as a behest of ruling government. तो वेस्ट बंगाल में जो SIR हुआ प्रोसेस, द रिवेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स ID कार्ड, इनमें से 91 लाख वोटर गॉट डिलीटेड. तो अपोजिशन को ये लगता है कि ही इज नॉट इम्पार्शियल और ही इज नॉट न्यूट्रल. तो इसीलिए दोनों सदन में एक मोशन लाया गया कि इनको रिमूव किया जाए, बट ये फाइनली फेल हो चुका है. तो आज हम लोग बात करेंगे इसका CEC का रिमूवल प्रोसेस. इफ यू हैव स्टार्टेड माय प्रीवियस लेक्चर, आई हैव डिस्कस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर डिटेल एनालिसिस कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 डिटेल हमने बात किया प्रीवियस वीडियो में. बट इन दिस टॉपिक वी विल बी confined to ourselves only particular small topic, that is removal process of chief election commissioner. So let's get into the main topic. As I've told you, why this motion was taken place, because of there was a biased conduct by allegations by oppositions, mainly in West Bengal SIR process. If I talk about election commission, it combines of two election commissioner and one CEC, right? CEC removal process is very tricky, but the rest of two election commissioners, they can be removed easily. If CEC recommends or suggested to remove rest of the election commissioners, the president can revoke both of them, but to remove the chief election commissioner is a very tricky one. So what is the process and how to follow that process? All these things we are going to discuss one by one, right? So the chair of chief election commissioner, it could become vacant in certain scenarios. For example, when tenure is over, right? And tenure means either 65 years or 6 years, whichever comes earlier. Second, if the chief election commissioner resigns to president, right? Resignation to the president. Third is removal process. So the removal process is not by choice. इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी इस वीडियो में. Remember, we are talking about only chief election commissioner. In the last video, for the election commissioner, the rest two members, they can be removed very easily, just based on the recommendation of chief election commissioner. So chief election commissioner removal process, when you speak about, here comes the base of this removal process. एक्चुअल में ये स्टार्ट कहाँ से हुई? तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 324 सब क्लोज 5, राइट? CEC का रिमूवल प्रोसेस. ये आर्टिकल 324 सब क्लोज 5 ये कहता है द रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज टू बी द सेम एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज. ये सिंपली कह के छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि CEC का रिमूवल प्रोसेस क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होना चाहिए, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा बहुत सारा बेस है जिसके तहत पर ये रिमूवल प्रोसेस होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. अब सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसेस भी हमको पता होना चाहिए, राइट? इसका भी बहुत सारा आर्टिकल होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस कैसे किया जाता है. तब आती है बात आर्टिकल 124 सब क्लोज 4, राइट? फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, इसके अंदर भी द रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा गया कि कैसे रेजिग्नेशन और कैसे रिमूव किया जा सकता है. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का दो आर्टिकल ये और ये लॉ, ये दोनों कहता है कि रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट? फिर आता है एकोर एक्ट. मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट? CEC का रिमूवल प्रोसेस कौन कहता है? आर्टिकल 324 सब क्लोज 5, राइट? ये कह के छोड़ दिया कि इट शुड बी विद सुप्रीम कोर्ट जज. बट ये सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल प्रोसेस कहाँ से आता है? आर्टिकल 124 सब क्लोज 4. और ये क्या कहता है? जस्ट ए ग्राउंड कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूव का प्रोसेस ओनली ऑन टू ग्राउंड्स कुड बी देयर. वन इज इनकैपेसिटी, वन इज मिसबिहेवियर. अब एक डिटेल प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे मोशन लाया जाता है, कैसे सारा प्रोसेस फॉलो करना. उसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया, दैट इज कॉल्ड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. इस एक्ट में डिटेल कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूव करना कैसे किया जा सकता है. द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, राइट? कैसे लोकसभा में या राज्यसभा में मोशन लाया जा सकता है. डिटेल प्रोसेस इसके बारे में कहा गया अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. सो आप समझ रहे हो, राइट? फर्स्ट क्या हुआ? आर्टिकल 324 क्लोज 5 क्या कह के छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट की जज का रिमूवल प्रोसेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? जस्ट ग्राउंड्स बोला. अंडर आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 ग्राउंड्स कह के छोड़ दिया. अब ग्राउंड्स के आगे जो प्रोसीड्यूर होता है, राइट? प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स, ये कहां से आया? दैट केम फ्रॉम जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. सो ये सब सारा बेस है जिसके तहत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव की जा सकती है अंडर बाय फोर्स. ओके, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की जज का रिमूवल प्रोसेस का जो आर्टिकल है 124(4),
द प्रूफ मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, राइट। सो इसमें दो ग्राउंड होता है कि एक मिसबिहेवियर, वन इज इनकेपेसिटी। सो बेसिकली मिसबिहेवियर एस्पेक्ट ही हम लोग इसलिए बात करेंगे कि इसी के तहत ये मोशन मूव किया गया था अभी लोकसभा एंड राज्यसभा में। और इनकेपेसिटी होता है कि देखो किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इफ दैट पर्सन इज फिजिकली और मेंटली अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तब इनको रिमूव किया जा सकता है कि मेंटली इल है या फिजिकली इल है। बट ये प्रूव मिसबिहेवियर, अगर अपना कंडक्ट सही से ना करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही इज नॉट बीइंग न्यूट्रल और कुछ गलत काम कर रहे, तब ये मिसबिहेवियर के अंडर पे इनको रिमूव करने की मोशन लाया जा सकता है, राइट, अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 4। सो इनिशिएशन, सबसे पहले अगर अपोजिशन को ये लगता है कि द सीईसी इज नॉट करेक्ट, राइट, इनको रिमूव करना है। रिमेंबर वन थिंग, अभी तक हिस्ट्री में नो सीईसी हैज बीन रिमूव्ड एवर। क्यों अब तक ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया, इसमें बहुत सारा कारण है। लाइक देयर इज ए वेटो पावर ऑन स्पीकर, चेयरमैन, फिर मोशन पास करना इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी टफ टास्क टू कैरी इट आउट, राइट। तो सबसे फॉरमोस्ट टास्क इज टू देयर हैज टू बी सिग्नेचर। देखो किसी भी मोशन या किसी भी बिल को पास कराना है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, इट हैज टू बी ब्रॉट इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो अगर सीईसी को हटाना है और सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाना है, द प्रोसेस इज सेम बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले एक मोशन लाना पड़ेगा, या तो राज्यसभा में हो सकता है या लोकसभा में हो सकता है। इफ दैट मोशन हैज टू बी ब्रॉट इन लोकसभा, देयर हैज टू बी सिग्नेचर ऑफ 100 मेंबर, राइट। और इफ इट हैज टू बी डन इन राज्यसभा, दैट मीन्स the motion or the proposal has to be signed by 50 members of Rajya Sabha. Okay, अब अभी किसी को अगर डाउट हो रहा है कि what is motion is nothing but it's a proposal. किसी चीज को लाने के लिए एक पार्लियामेंट पे होता है proposal. So proposal लाने के लिए सबसे पहले आपको एक साइन चाहिए होता है, राइट, कि इतना लोग मेरे सपोर्ट पे है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, राइट। सेकेंड स्टेप इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, राइट। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, द चेयरमैन द हु कंडक्ट्स द लोकसभा, ही इज कॉल्ड ए स्पीकर, राइट। राज्यसभा का जो भी लीडर होते इनको कहा जाता है चेयरमैन। द नेम इज डिफरेंट। तो ये 100 मेंबर का लोकसभा का साइन और 50 मेंबर का साइन होने के बाद ये मोशन अगर एडमिट करना है, राइट, उसके बाद ही आगे जा पाएगा। मान के चलो ये मोशन साइन किया गया 100 मेंबर्स के द्वारा लोकसभा में, पहला स्टेप पास हो चुका है। अब ये जाएगा स्पीकर के पास। अब स्पीकर के पास ये राइट है देखने के लिए कि वेदर इस मोशन को आगे पास कराना है कि नहीं कराना है। इफ द स्पीकर फील्स दैट देयर इज नो इनफ ग्राउंड टू पास दिस मोशन, तो रिजेक्ट कर सकता है। और सेम चीज चेयरमैन के बारे में भी है। राज्यसभा में अगर इनिशिएट हुआ है तो चेयरमैन के पास ये पावर है कि ही हैज टू लुक अपॉन एंड जज दिस मोशन टू पास इट और नॉट। तो बेसिकली ये एक वेटो पावर की तरह यूज होता है। तो इसी ग्राउंड पे अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है तो गेम ओवर। One thing, okay, the motion we are talking about, the removal process of chief election commissioner, right? इसको informally क्या कहते हैं? Impeachment motion. But this word, it has never been used in any of the constitution, और actual में constitution में ये mention है under article 124 subclause 4 I बताया था कि only proved misbehavior and incapacity. Question कभी आया है किसी भी एग्जाम में impeachment motion is been mentioned in under article number 124 is it correct or not? तो आप सीधा बोल देना कि it's wrong. So बात करें थे हम लोग the मोशन को आगे पास कराना हो नहीं कराना हो। इफ द स्पीकर फील्स द मोशन लैक्स एविडेंस, और स्पीकर को लगता है कि मोशन सही में है कि इस पे कुछ जेन्युइन कारण है, ही कैन पास इट। और इफ ही फील्स देयर इज लैक ऑफ एविडेंस, ही कैन रिजेक्ट इट। द गेम इज ओवर। अब आता है थर्ड स्टेप। इफ इट इज एडमिटेड बाय द चेयरपर्सन और स्पीकर, देन एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी अंदर पे। ओके, उस 3 मेंबर की कमेटी में रहेंगे कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोई एक्सपर्ट, ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये कमेटी डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सच में दे आर गिल्टी और नॉट। ओके, इफ इट इज फाउंड दैट पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट जज ही इज गिल्टी, तब जाके रिपोर्ट करेंगे हाँ दिस इज करेक्ट। ओके, अगर ये जाके रिपोर्ट करेंगे इसमें लैक ऑफ एविडेंस है और दे आर नॉट फाउंड टू बी गिल्टी, तो जाके वहां पे गेम ओवर। देखो हर स्टेप में पास करना पड़ेगा। अगर वहां पे 3 मेंबर की कमेटी के द्वारा पाया जाता है कि दैट पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फाउंड टू बी गिल्टी, अब आती है मोशन को सही में वोटिंग से पास कराना। अब आती है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास कराना पड़ेगा आपको। व्हेन वी टॉक अबाउट द वोटिंग, राइट, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू वोटिंग इन पार्लियामेंट। ओके, वन इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी, one is called special majority and one is called effective majority. देखो पार्लियामेंट पे ये सारा मेजोरिटी जो एक प्रोसेस होता है वोटिंग कराने का। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे कहा गया
कि दैट मीन्स द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लोकसभा में पास कराना है फर्स्ट, ओके, तो पहले तब लोकसभा का जितना मेंबर है 545, राइट, तो 545 का हाफ से +1 50% इसका वोट चाहिए होगा, प्लस उस सेशन में जितना लोग बैठे हुए प्रेजेंट है उनमें से 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों चाहिए होगा. ओके, यहाँ पे देखो एन लगा हुआ है, 575 का 50% का हाफ प्लस 2/3 ऑफ दैट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल मेंबर्स में अंतर हो सकता है, राइट. अगर टोटल मेंबर का हाउस 545 है उसमें से प्रेजेंट कम ही हो सकते हैं उस सेशन में, राइट. तो ये दोनों पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये पार्टिकुलर हाउस पे पास हो पाएगा, राइट. Similar way, the same process has to be done in other houses of the parliament. Okay, see, the both houses of has to pass and must pass this motion in the same session. Okay, for example, ये लोकसभा में ये पास हो जाती है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा विंटर सेशन में, और जाके ये रुक जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा इसको अगले सेशन में पास कर देन इट्स नॉट गोइंग टू बी वैलिड, ये लैप्स हो जाएगा. उसी सेशन में ही पास कराना पड़ेगा, राइट. तो आप चीज़ों को समझ रहे हो कितना रिजिड और कितना टफ है सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना, राइट. तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, दैट इज 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, अगर आपको पढ़ना है सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, मुझे बताइए कमेंट पे, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा. सो डिफरेंट सिनारियो पे डिफरेंट मेजोरिटी यूज़ की जाती है. ओके, सो उसके बारे में अलग अलग आर्टिकल में भी कहा गया, उस प्रोसेस के आर्टिकल में कहा गया. ओके, फिलहाल बस इतना ही समझ जाइए आप. ओके, the final order. If the both house of the parliament feels on a pass this motion by special majority, that means सारा गेट पार हो चुका है, राइट. All the gate are passed smoothly. अब जाके ये बिल passed on कहलाएगा, बट उसके बाद जाके ये प्रेसिडेंट को एक नोटिस दी जाएगी, भाई आप देखो पार्लियामेंट का दोनों सदन ने इसको पास करा लिया, ही इज फाउंड टू बी गिल्टी, कमेटी के मेंबर के द्वारा ये गिल्टी पाया गया, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउस से पास हो चुका है. अब जाके आप रिमूव करो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ या सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ, तब जाके ये प्रेसिडेंट नोटिस निकालेगा, राइट, कि आपका काम खत्म, आप निकलो और आप फाउंड टू बी गिल्टी इन टर्म्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. सो अगर इसको आप डायग्राम की तरह समझने की कोशिश करोगे, काफ़ी सिंप्लीफाइड किया हुआ है. ओके, फर्स्ट स्टेप, देन ये आएगा सेकेंड स्टेप स्पीकर के पास, चेयरमैन के पास, ये देखेगा, फिर आएगा ये तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, राइट, थर्ड स्टेप, राइट. अगर इन्वेस्टिगेशन को ये लगता है कि ही इज फाउंड टू बी गिल्टी, फिर आता है पासिंग ऑन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज फोर्थ स्टेप. अब ये भी पास हो जाता है, राइट, फिर आता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. ओके, सी ईच स्टेप में, राइट, अगर यहाँ पे फेल होता है देन इट इज कैंसल्ड. ओके, अगर यहाँ पे फेल होता है देन इट इज कैंसल्ड, अगर यहाँ पे भी अगर फेल होता है देन दिस मोशन इज कैंसल्ड. 1 2 3 4 4 जगह में उसको पास कराना पड़ेगा. अगर एक भी जगह में ये फेल हुआ है तब जाके ये मोशन पास नहीं हो पाएगा और ये फेल कहलाएगा. अभी रिसेंटली जो कांड हुआ है श्री गणेश कुमार जी, ये फर्स्ट स्टेप में रुक गया, राइट. स्पीकर और चेयरमैन ने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है क्या. जब ये एक्चुअल में ये इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हुआ था लोकसभा में एंड राज्यसभा दोनों जगह में स्टार्ट हुआ, राइट, दोनों जगह साइन हो चुका है. इसके बावजूद भी स्पीकर और ये चेयरमैन राधाकृष्णन जी दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि आपके पास कोई एविडेंस है नहीं कि गणेश कुमार इज फाउंड टू बी डूइंग एनी रॉन्ग डूइंग और नॉट. सो दैट्स इट कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस, राइट. अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ के बारे में अगर पूछा जाए ना, तो इसमें ये कह सकता है कि स्पेशल मेजोरिटी यूज होता है इस पे. ओके, हमेशा याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट मोशन के बारे में कहीं जिक्र है नहीं, कि इस पे बस ओनली मेंशन किया गया इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर, दैट इज आल्सो फॉर सुप्रीम कोर्ट जज. फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ओके 1968, ये एक्ट डिटेल में बताता है कि कैसे रिमूव करना है कि कैसे नहीं करना है, राइट. सो आई होप वो आप सबको पसंद आया होगा. मैंने एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. वन थिंग, ओके, आई ट्राई टू अवॉइड पीपीटी डिजाइन. ओके, मैं जितना चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ उतना कोशिश करता हूँ, बट आई डोंट वांट टू मिक्स्ड अप एवरीथिंग विद टू मेनी लाइन्स एंड सेंटेंसेस. अभी जमाना बदल चुका है कि थोड़ा सा डायग्रामेटिकल चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप सबको याद ज्यादा रहेगा. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ओके, आई होप आप सबको पसंद आया होगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बाय बाय. कीप ऑन स्टडीइंग.